हेलो एवरीवन, दिस इज सीए प्राजक्ता मोंढे। होप आप सब लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही हैं फॉर द अपकमिंग सीए इंटर एग्जामिनेशंस। In this video, I am going to discuss the revision test paper that has been released by the Institute for Income Tax for the upcoming September 26 examinations. Now, before directly starting with the RTP, as I always say, it is very important to understand what is the relevant study material applicable for your attempt. So, for the September 26 examination, the income tax law applicable will be the law amended as per the Finance Act 2025. So, all the amendments that have been made by the Finance Act 2025 are applicable to your attempt. The assessment year would be assessment year 26-27, right? Now, along with the study material which you have to refer, all the notification circulars which all have been issued till 28th of February 2026 will also be included in your syllabus. So, whatever additional circulars have been issued post the release of study material have been hosted on the statutory update by the institute. अभी इस अटेम्प्ट के लिए आप लोगों का जो स्टैट्यूटरी अपडेट है दैट इज सेम एज द स्टैट्यूटरी अपडेट एप्लीकेबल फॉर May 26. For that, I have already separately recorded a video, so the link will be there in the description box. You can go through it and then you can start solving the questions. So let us discuss the case scenario. There is only one case scenario, which is the MCQ type question, like multiple choice question givens. After that, आपके सारे subjective questions ही prescribed है. So let us start. Okay. Mr. Anirudh, aged 38 years, is a resident individual employed as a senior project consultant in a technology firm, Messrs. M&E Enterprises in Bangalore. He is paying tax under the default tax regime for the previous year 25-26, that is assessment year 26-27. Now, as I always say, whenever you are reading a question, income tax में question read करना is very very important. Okay, reading between the lines is very important. तो जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तभी हमको ध्यान रखना है क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो आगे के हमारे क्वेश्चन को या हमारे ऑब्जेक्टिव्स पे हमको क्वेश्चन जिसपे पूछा जा सकता है. सो जो केस सिनेरियो दिया है, फर्स्ट थिंग विच वी शुड कीप इन माइंड इज दैट द क्वेश्चन इज फॉर अ रेसिडेंट असेसी. तो कोई भी प्रोविजन या कोई भी रिलैक्सेशन, डिडक्शन, एग्जेम्पशन जो रेसिडेंट असेसीज पे अप्लाई होते हैं वो सारे हमको दिमाग में रखना है कि ठीक है आगे चल के क्वेश्चन में ऐसा कोई प्रोविजन आ सकता है जो कि रेसिडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है. ठीक है. सेकेंड थिंग, अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम. सो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम मतलब अब हमारा क्या हो गया है 115 BAC. सो वो हमको ध्यान रखना है कि डिफॉल्ट टैक्स रेजिम हमारे ऊपर अप्लीकेबल है. ठीक है. ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26 ही रिसीव्ड अ ग्रॉस सैलरी ऑफ 15,75,000. ठीक है. Sorry. TDS deducted on salary during the year is 1,09,200. He also provided technical consultancy services. उसने कुछ consultancy services भी दी है and charged fees for 48,000 for from startup A and 52,000 from startup B, whose turnover during the financial year 24-25 exceeded rupees 5 crore. ठीक है. He opts for the presumptive taxation under 44 ADA of the Income Tax Act. So हमारा जो प्रोफेशनल्स का presumptive taxation है उसमें इनकम ऑफर कर रहा है. सो मिनिमम 50% उसको प्रॉफिट ऑफर करना पड़ेगा, है ना. चलो आगे बढ़ते हैं. इन नवंबर 2025 he made the following outward remittances under the LRS through an authorized dealer. LRS remittances हुए हैं 10th of November 8,50,000 to यूनिवर्सिटी इन जर्मनी. सो ये पर्पज हो गया हमारा एजुकेशन पर्पज हो गया. On 25th of November 3,50,000 to his brother in Australia for personal maintenance. तो दो पर्पज है, एक एजुकेशन एक पर्सनल अदर पर्पजेस. सो एजुकेशनल एंड मेडिकल के लिए रेट्स अलग है एंड देन ऑब्वियसली हमारा जो अदर पर्पजेस है वहां पर हमारा लिमिट एंड रेट चेंज हो सकता है. सो दैट इज वाई वी नीड टू नो कि रेमिटेंस जो हुआ है एलआरएस में उसका पर्पज क्या है. ऑल्सो एजुकेशन फंडेड फ्रॉम पर्सनल सेविंग्स. तो एजुकेशन लोन नहीं है, एजुकेशन फ्रॉम पर्सनल सेविंग्स, राइट. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ रेमिटेंस. आगे हो सकता है टीसीएस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आएगा. सो वी नीड टू बी माइंडफुल कि टीसीएस एप्लीकेबल किस पे होगा, कितने परसेंट से होगा. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. ही ओन्स अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग कंसिस्टिंग ऑफ 3 फ्लोर्स. तो पूरी बिल्डिंग उसी की है, 3 फ्लोर्स हैं. फ्लोर 1 इज एसओपी, फ्लोर 2 is vacant and for the whole year, and floor 3 is let out at a monthly rent of 25,000. ठीक है. He paid municipal taxes of 30,000 for the entire building. मतलब हम वन थर्ड कर सकते हैं. उसमें बोला है identical floors
तो हर चीज हमारी इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी. एंड इंटरेस्ट ऑफ 12 lakhs ऑन अ हाउसिंग लोन टेकन फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया था, 12 लाख का अभी इंटरेस्ट इस साल के लिए पे किया है. ऑन 15th of March 2026 ही सोल्ड अ कमर्शियल प्लॉट सेल हुआ है, ठीक है, फॉर 65 lakhs which he acquired on 31st of January, that is before 23rd of July 2024. अभी कैपिटल गेन क्वेश्चंस में ये डेट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, रेट पर्पसेस के लिए, कंप्यूटेशन पर्पसेस के लिए, आपको टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, हर पर्पस के लिए 23rd July इज अ इम्पोर्टेंट डेट टू बी केप्ट इन माइंड. फॉर 40 lakhs कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिया है. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर इज 65 लाख. तो यहाँ तो उन्होंने थोड़ा इजी कर दिया हमको कि कंसिडरेशन और एसडीवी दोनों सेम है ना. कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दे दिया उन्होंने दोनों सालों का, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. बेस्ड ऑन द फैक्ट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. फर्स्ट क्या दिया है, compute the income or loss under the head house property for the assessment year 26-27. In case of loss determine the amount eligible for set off against the heads of income. ठीक है. सबसे पहली चीज, जब भी आप क्वेश्चन शुरू कर रहे हो बेसिक चीजें दिमाग में रखनी है जो हमने पूरी स्टोरी पीछे की पढ़ी है. तो बीएसी है, ठीक है. सो जहां पर भी आप लॉस सेट ऑफ की बात करोगे, डिडक्शंस की बात करोगे, कीप इन माइंड कि हमारा 115 बीएसी है, डिफॉल्ट रेजिम है ना. एसओपी जो भी उसका एसओपी है प्रॉपर्टी, उस पर तो नील हो जाएगी वैल्यू, और कोई भी लोन का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा बिकॉज यू आर ऑप्टिंग अंडर द डिफॉल्ट रेजिम. लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में आपको रेंट क्वेश्चन में गिवन है, सो वी हैव कंसिडर्ड द रेंट लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस. सो म्यूनिसिपल टैक्सेस हमने क्या करा है, 30,000 का 1/3, राइट, बिकॉज सिर्फ 1/3 प्रॉपर्टी लेट आउट है तो पूरे म्यूनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा. दिस गिव्स यू 2,90,000 आपका एनएवी आ जाएगा. नाउ आफ्टर योर नेट एनुअल वैल्यू जो दो डिडक्शंस आपको दिए जाते हैं, फर्स्ट इज द स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी, सो आपने 30% माइनस कर दिया, एंड इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, राइट. 24B में जो आपको हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, अगेन इंटरेस्ट जो क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 12 लाख. 12 लाख का आपको 1/3 डिडक्शन मिलेगा, सो 4 लाख का आप क्या क्लेम कर सकते हो, डिडक्शन क्लेम कर सकते हो. So you will end up in a loss of 1,97,000. So there will be a loss under the head house property of 1,97,000. However, क्योंकि हम डिफॉल्ट रेजिम में है, इस लॉस का हमको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पाएगा. बेनिफिट एज इन सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पाएगा. सो व्हाट इज द करेक्ट अप्रोप्रिएट आंसर, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ 1,97,000. However, such loss can neither be set off against other heads of income nor it can be कैरीड फॉरवर्ड. सो वो चीज आपको ध्यान रखनी है कि क्योंकि डिफॉल्ट रेजिम है, अगर ये रेगुलर रेजिम होता तो आप इसको सेट ऑफ कर सकते थे, है ना, सैलरी हेड से या किसी भी दूसरे हेड ऑफ इनकम से. सो वो चीज हमको ध्यान रखनी है कि हमारे केस में बीएसी ऑप्ट किया हुआ है, ठीक है. चलो, ऑथराइज्ड बैंक इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एज वी डिस्कस. जैसे ही एलआरएस आएगा हमको ध्यान रखना है, टीसीएस का क्वेश्चन आ सकता है. मिस्टर अनिरुद्ध फॉर फॉरेन रेमिटेंसेस, नाउ टोटल रेमिटेंस उसने कितने का किया है, 850 प्लस 350. सो हमारा टोटल रेमिटेंस हुआ है 12 लाख का. 12 लाख में हम लोगों के फर्स्ट 10 लाख तो एग्जेम्प्ट ही हो जाएंगे, उसके ऊपर हमको कोई टीसीएस देने की जरूरत नहीं है. बैलेंस 2 लाख पे कौन सा रेट लगाएंगे, सो फर्स्ट ऑब्वियसली एजुकेशन का जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, एंड देन बैलेंस जो है आपका, मतलब जो 2 लाख है वो किधर से बच रहा है, वो हमारा अदर पर्पजेस से बच रहा है. उसके ऊपर हमारा रेट एप्लीकेबल इज 20%. सो हमारा जो टीसीएस बैंक कलेक्ट करेगी दैट विल बी 40,000, है ना. सो हम लोगों को टीसीएस देना पड़ेगा 40,000. ऑब्वियसली उसका क्रेडिट हम लोग रिटर्न के टाइम पर क्लेम कर सकते हैं, राइट. नाउ आगे दिया है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन arising from transfer of commercial plot in the hands of Mr. Anirudh. Also determine the tax thereon ignoring surcharge and cess. ठीक है. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, जब भी कैपिटल गेन का क्वेश्चन आता है देर इज स्टिल अ कंफ्यूजन. बहुत बार मुझसे स्टूडेंट्स ये चीज बोलते हैं कि मैम इंडेक्सेशन बेनिफिट तो पिछले प्रॉपर्टीज के लिए तो उन्होंने रिटेन किया है. सी, कंप्यूटेशन मैकेनिज्म में देर इज नो चेंज इररिस्पेक्टिव ऑफ योर परचेज डेट. अगर आपने प्रॉपर्टी 23 जुलाई के पहले खरीदी है चाहे बाद में खरीदी है, कंप्यूटेशन मैकेनिज्म रिमेन्स द सेम, ठीक है. सो इंडेक्सेशन बेनिफिट इज रिमूव्ड ऑल टुगेदर. However, just to prevent any undue hardship for resident individuals, कि अगर उनको वो प्रॉपर्टी उन्होंने 23 जुलाई के पहले बेच दी होती तो इंडेक्सेशन मिल रहा था, बट क्योंकि इन्होंने प्रोविजंस चेंज कर दिए तो मेरा टैक्स ज्यादा बन रहा है,
वो डिफरेंशियल टैक्स आपको पे करने की जरूरत नहीं है। तो जो रिलैक्सेशन आया है वो 112 में आया है, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। हमारा जीटीआई कैलकुलेट करने का प्रोसेस में कोई चेंज नहीं होगा। सेक्शन 112 जो हमारा टैक्स रेट गवर्न करता है ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वहां पर उन्होंने रिलैक्सेशन दिया है कि अगर प्रॉपर्टी 23 जुलाई से पहले की है, 23 जुलाई 2024 से पहले की है, तो फिर आप कैपिटल गेन दोनों तरीके से कैलकुलेट करो। और अगर आपको पुराने प्रोविजंस के हिसाब से या तो लॉस हो रहा है या फिर टैक्स कम लग रहा है, तो आपको अकॉर्डिंगली टैक्स पे करना है। सो सपोज ओल्ड प्रोविजंस में अगर लॉस है तो टैक्स जीरो आएगा ऑब्वियसली। सो आपको नए प्रोविजंस में लेट से 15,000 का टैक्स पेबल आ रहा है, आपको ये टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लॉस का कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा। दैट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू बी केप्ट इन माइंड। सिमिलरली अगर मेरा ओल्ड प्रोविजन मतलब इंडेक्सेशन और 20% है ना, और न्यू प्रोविजन मतलब विदाउट इंडेक्सेशन लेकिन रेट विल बी 12.5%। सो ओल्ड प्रोविजन के हिसाब से अगर मेरा टैक्स आ रहा है लेट से 5,000 और न्यू प्रोविजन के हिसाब से मेरा टैक्स आ रहा है 10,000, तो ये 5,000 का मुझे वो लोग रिलैक्सेशन दे देंगे, मुझे 5,000 ही टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंप्यूटेशन आपको दोनों तरीके से करना है। टैक्स का गेन सेम रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर पोजिशन यू अडॉप्ट फॉर द टैक्स लाइबिलिटी। तो यहाँ पर पहले तो हम गेन निकाल लेते हैं, है ना। कैपिटल गेन सिंपल हो गया, अब इंडेक्सेशन ही नहीं है, और उसमें एसडीवी और सेल्स कंसिडरेशन भी सेम है, वो भी क्वेश्चन में दे दिया। तो 65 लाख आपका एसडीवी हो गया, कोई ट्रांसफर एक्सपेंसेस नहीं है, तो हम माइनस कर देते हैं हमारी कॉस्ट ऑफ अक्विजिशन, सिंपल 25 लाख, है ना गेन। तो हमारा गेन तो सिंपल सिंपल आ गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 25 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्यों है? बिकॉज ऑफ द पीरियड ऑफ होल्डिंग, डेट ऑफ परचेज एंड डेट ऑफ ट्रांसफर। सो हमारा 25 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। अब टैक्स कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगी? न्यू प्रोविजंस क्या है? 12.5% टैक्स। सो 25 लाख पे मैंने लगा दिया 12.5%, सो मेरा टैक्स आ रहा है 3,12,500। ओल्ड प्रोविजंस मुझे क्या बोल रहे हैं कि आप इंडेक्सेशन बेनिफिट लगा के देखो आपका कितना गेन बनता है। सो मैंने इंडेक्सेशन बेनिफिट लगाया, इंडेक्सेशन बेनिफिट लगा के, पर मेरा रेट क्या था पुराना? 20%, है ना, 12.5 तो बाद में हुआ। 20% के हिसाब से मेरा जो टैक्स आ रहा है दैट इज 435,632। सो इवन आफ्टर गिविंग इंडेक्सेशन बेनिफिट माई टैक्स लाइबिलिटी इज हायर इन द ओल्ड प्रोविजन बिकॉज ऑफ द रेट। ओके, सो इवन इफ इन दिस केस आई I'm not eligible for any relaxation because in any case मेरा टैक्स यहाँ पर कम है। सो मेरा टैक्स लाइबिलिटी विल बी 3,12,500। अब आप देखो नीचे वाला, अगर आप आंसर देखोगे तो वहां पर उन्होंने आपको सेकेंड वाला ऑप्शन दिया हुआ है। सो कंफ्यूज नहीं होना है कि 23 जुलाई के पहले की प्रॉपर्टी है तो पुराने प्रोविजंस लगेंगे, बाद की है तो नए प्रोविजंस लगेंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ टैक्स कंप्यूटेशन में आप कंपेयर करोगे, ठीक है, एंड कंपेयर करने में जो बेनिफिशियल है उतना टैक्स आपको देना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कंप्यूट द जीटीआई ऑफ मिस्टर अनिरुद्ध। ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है, सिंपल है। ऊपर हमने हेड्स ऑफ इनकम तो निकाल ही रखा है, फटाफट जीटीआई निकाल लेते हैं। सैलरी, क्वेश्चन में लिखा है ग्रॉस सैलरी। बेसिक डिटेल्स, माइन्यूट डिटेल्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो ग्रॉस सैलरी है, इसीलिए हम स्टैंडर्ड डिडक्शन अलग से माइनस करेंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा होता इनकम अंडर द हेड सैलरीज, तो आप सिंपल वही फिगर जीटीआई में ले लेते हैं, ठीक है। सो 15,75,000 में से मैंने 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस किया, 15 लाख की मेरी सैलरी आ गई टैक्सेबल। नाउ पीजीबीपी की, सॉरी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दी थी, लॉस था। क्योंकि मैं 115 बीएससी में हूं, मैं इस लॉस का कोई सेट ऑफ नहीं ले सकती, तो हाउस प्रॉपर्टी का पिक्चर यहीं पे क्लोज हो गई। पीजीबीपी क्वेश्चन में गिवन है, उसने दो कंसल्टेंसी दी थी देखो, है ना, और उसने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट किया है, ये भी क्वेश्चन में बोला है कि 44 एडीए ऑप्ट किया है। तो दोनों ग्रॉस रिसिप्ट्स को ऐड करके हमने क्या कर लिया, उसका 50%। सो 50,000 का हमारा पीजीबीपी की इनकम हो गई। एंड कैपिटल गेन हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया, सो टोटल मेरी जीटीआई आ जाती है 40,50,000, राइट, सिंपल 40,50,000 मेरी जीटीआई आ गई। अब चलते हैं कंप्यूट द टैक्स पेबल आफ्टर कंसिडरिंग टीडीएस टीसीएस इफ एनी। सो टैक्स लायबिलिटी के लिए हमको क्या दिया है? सबसे पहले तो हम इसमें कोई स्पेशल रेट इनकम है क्या? हाँ, हमारी कैपिटल गेन इनकम स्पेशल रेट इनकम है, उसको अलग कर देंगे, और रेगुलर टैक्स रेट जो है वो अलग से निकाल लेंगे। तो इसमें से मैंने कैपिटल गेन इनकम को अलग कर दिया 40,50,000 में से। अगर मैंने मेरा 25 लाख घटा दिया है ना, 15,50,000 पे मैंने यहाँ पे स्लैब्स भी लिखे हैं, जस्ट फॉर द पर्पसेस ऑफ रेफरेंस। 4 लाख, 4 to 8, 8 to 12, है ना, 0, देन 5, 10, 15, इस तरीके से हमारे स्लैब्स इंक्रीज होंगे
and accordingly you will be calculating your tax liability. So this is your tax on the regular income. कैपिटल गेन पे मैंने ऑलरेडी टैक्स निकाल रखा है 312,500, सो मैंने दोनों को क्या कर दिया, ऐड. मेरा टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ गई 4,25,000. सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज द इनकम इज नॉट एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड. ये सारी चीजें भी चेक करनी है, ठीक है. कभी कभी जल्दी जल्दी में हम सरचार्ज एप्लीकेबिलिटी, मार्जिनल रिलीफ एप्लीकेबिलिटी भूल जाते हैं. सो टैक्स कैलकुलेशन की स्टेप हमेशा वही रहेगी जो हम एकदम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते थे हमेशा, कि सबसे पहले आप टैक्स निकालो, सबसे पहले आप चेक करो कि स्पेशल रेट इनकम कौन सी है, रेगुलर रेट इनकम कौन सी है. अगर कोई रेगुलर रेटिंग स्पेशल रेट इनकम नहीं है, वेल एंड गुड. अगर है तो उस पर अलग से टैक्स निकालो. आफ्टर यू कैलकुलेट टैक्स यू हैव टू चेक सरचार्ज एंड मार्जिनल रिलीफ, दोनों में से जो भी अप्लीकेबल हो रहा है. वंस यू हैव कैलकुलेटेड सरचार्ज, मार्जिनल रिलीफ और योर रिबेट, है ना, जो भी केस है, या तो रिबेट लगेगा या तो सरचार्ज लगेगा, दोनों तो साथ में लगेगा नहीं. रिबेट के केस में भी आपको मार्जिनल रिलीफ देखनी है, सरचार्ज के केस में भी आपको मार्जिनल रिलीफ देखनी है. आफ्टर दैट यू कम टू सेस, है ना. तो ये प्रोसेस अपनी सेम रहनी चाहिए हमेशा. कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको टैक्स कैलकुलेशन आता है तो जैसे ही क्वेश्चन में बोला टैक्स कैलकुलेशन, अपना बेसिक से आपको सोचना शुरू करना है, ठीक है. नाउ यू कैलकुलेटेड योर टैक्स, देन सरचार्ज नहीं है तो हमने सीधे सेस लगा दिया. अब बात आती है टीडीएस टीसीएस. तो सबसे पहले तो आपका टीडीएस हुआ है सैलरी पे, तो वो मैंने टीडीएस माइनस कर दिया. अगला क्वेश्चन, अगला जो आपका टीडीएस हुआ है वो है प्रोफेशनल फीस. तो देखो दो पार्टीज से उसको प्रोफेशनल फीस आई थी, एक था 48,000, एक था 52,000. 48 पे नहीं होगा लेकिन 52 पे टीडीएस करना पड़ेगा सामने वाले को. तो मेरा टैक्स डिडक्ट हुआ होगा, मेरा एज इन अनिरुद्ध का टैक्स डिडक्ट हुआ होगा. सो वो 5,200 का हम यहाँ पर क्या लेंगे, क्रेडिट. तो ये मेरा सैलरी टीडीएस हो गया, है ना. ये मेरा प्रोफेशनल फीस का टीडीएस हो गया. 40,000 मेरा टीसीएस हुआ है, ये हमने ऑलरेडी चेक ऊपर निकाला है एमसीक्यू में. एंड ये अगेन भूलने वाली चीज है जो याद रखनी है कि प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन हुआ है, सो उस केस में भी हमारा टीडीएस हुआ होगा क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ऊपर की है. सो जो मेरा सेल्स कंसिडरेशन है उसका 1% से मेरा टीडीएस हुआ है, वो भी मैंने क्या कर दिया, माइनस. तो 4,42,000 माइनस 10, 1,92,100 मेरा सैलरी टीडीएस हो गया. 5,200 मेरा प्रोफेशनल पे टीडीएस हुआ है. टीसीएस है 40,000, 65,000. सो नेट नेट मेरा टैक्स पेएबल आएगा 2,22,600, है ना. सो दिस इज माय फाइनल टैक्स पेएबल आफ्टर कंसिडरिंग टीडीएस, टीसीएस, क्रेडिट एप्लीकेबल. सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए, मतलब ये एमसीक्यू स्पेसिफिकली इसलिए अच्छा है क्योंकि ओवरऑल पूरे केस सिनेरियो में कहाँ कहाँ टीडीएस एप्लीकेबल हो सकता था वो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, राइट. सो दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से कि whenever you are going through a case scenario, it is very important to pay attention to the minute details in the given case, right. क्योंकि बार बार पीछे जाके पढ़ पाना हम लोगों को उतना टाइम मिलेगा जरूरी नहीं है. सो जब आप पहली बार पढ़ रहे हो, इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करके रखो, मार्क करके रखो, जो आपको लगता है कि हाँ इसके ऊपर नीचे क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है, ठीक है. सो दिस इज द एमसीक्यू पार्ट. Apart from that, there are subjective questions. You can try it once, solve it. If there is any issue, obviously you can discuss. And apart from that also, if there are any issues you feel कि कोई particular topic में you need to discuss anything, or how to present in examinations, how to solve a particular question, anything, feel free to reach out. All the very best for your examinations.